Good evening, friends. Those who are leaving the hall, please stand back because now we are going to start the analysis on the Union Budget 2025 by none other than CA Girish Ahuja sir. I request sir to please come on the dais. I request CA Girish Ahuja sir to please come on the dais. And request everyone please give a big round of applause for him. Though sir will say not to speak about him, but I am duty bound to say something about him. Sir is going to deliver 8th lecture on this union budget. और मैडम सीतारामन ने भी 8वां बजट प्लेस किया है पार्लियामेंट में टिल नाउ इन हिज लाइफ एंड सर अभी 3rd 4th डे हुआ है और 8वां बजट अभी लेक्चर मीटिंग देंगे एंड ही विल डिटेल्स अबाउट 360 about the budget, about the opportunities and the challenges for the industries, for the commerce, for the professionals, etc. So this is very fortunate that we are getting him the first address in the Calcutta, and the place and the people giving the response is very energetic, and I request everyone to please once again request him that give a largely full and what are the opportunities we can have in this budget and what the challenges we should take care. And before going further, I request Anand Bhaiya, please come on the dais and felicitate sir by offering Utterio to him. And memento to him, sir. Thank you, Anand, for doing the honors. Girish sir has been the member of the Government of India's Task Force for redrafting the Income Tax Act, and he has served as independent director on the Central Board of Directors of SBI and was nominated by the Government of India and Supreme Court to the Board of Directors of Unitech Limited. Dr. Ahuja has authored over 25 books on direct taxations, including popular titles for students and professionals, and has delivered more than 4,445 lectures till now in his life. 4,445 means 4,445 lectures उन्होंने दे चुका है. This is the 46th lectures in his life, and he is the patron of the Tax Law Education Society and has been president of SRCC Alumni Association for over 30 years. Thank you so much for coming and sparing his valuable time out of his busy schedules. And thanks a lot, sir. And now request you to please deliver his lectures. Thank you so much. Good afternoon to everyone. Sitting on the dais, of course, Vice Chairman CA Vishnu Tulsian. आज Vice Chairman है मुझे नहीं पता. चलिए. Ravi Patwa ji, of course, he is here only. The newly elected, of course, Central Council members. Sanjeev Sanghi ji कहाँ है? He must be here only. चलिए. Sitting in front of me, दो का नाम ले लेता हूँ. आनंद जी और काशी कंडेलवाल जी. बाकी का नाम लूँगा तो कोई रह जाएगा. तो इसलिए मैं बाकी नहीं ले रहा, प्लीज. चलिए सर. What kind of a budget? कैसा लगा सर? मैं तो सोच ही नहीं सकता, मुझे तो सपने में भी नहीं आ सकता था ये बजट होगा. Could you ever think of that? You could never think of that. क्या हुआ मुझे नहीं पता. This never happened when the election year was there. They could have brought at the time of election year also. They have not done it. Now I'm really surprised. What kind of a budget is this? चलिए करते हैं. Clause by clause करता हूं तो मैं वहीं से शुरू करूंगा और जहां पर 87A आएगा वहां स्टॉप लगाएंगे. चलिए. The first change, definition of capital asset enlarged, section 2 clause 14. देखिए, few years back एक issue आया था that foreign institutional investors are investing in securities like shares also, but they are making sale day in day out. Volume है उनका तो करते ही रोजाना बेचते हैं. So is it a business income or capital gain? Because is it a part of stock in trade or capital asset? The law was changed that time.
that stock in trade will not include securities held by the foreign institutional investor. तो वो कैपिटल एसेट हो गया था. अब हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं जिसका नाम है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2. 3 की बात नहीं कर रहा, 1 and 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड. They are also investing in securities and they are also buying and selling securities. The question came up, will it be a business income or capital gain? Clarity डाल दी that they will also be, it will, securities held by them will also be treated as capital asset. तो इसका मतलब capital gain होगा, चाहे बार बार सेल करें, it is not going to make any difference. Exactly like foreign institutional investor. ये काम कर दिया. अब दूसरा आपको याद हो तो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी आई थी जिसमें इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी दैट यू कैन नॉट कंट्रीब्यूट मोर देन 2,50,000 इन द यूलिप. और यह भी कह दिया था 45(1)(b) में अगर 2 लाख से 50 करोगे ऊपर तो 41(b) में डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट पेड द अमाउंट रिसीव्ड एंड अमाउंट पेड विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन. ये रखा था कि आप 2,50,000 से ऊपर करोगे तो कैपिटल गेन माना जाएगा. इसका ये कहा था. अब प्रॉब्लम ये आई, एक और रिस्ट्रिक्शन भी है दैट यू कैन नॉट कंट्रीब्यूट मोर देन 10% ऑफ द सम एश्योर्ड. ये भी तो रिस्ट्रिक्शन है. इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं. हालांकि LIP में लिखा था यू कांट कंट्रीब्यूट मोर देन 5 लाख एंड इफ यू कंट्रीब्यूट मोर देन 5 लाख 10(10)(d) नहीं लगेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाएगा. In the case of LIP, income from other sources. In case of ULIP, it is income from capital gain. But suppose you have contributed more than 10% to ULIP. 10(10)(d) तो लगता ही नहीं है. तो क्या ये बिजनेस इनकम, ये अदर सोर्सेज इनकम मानी जाएगी कि कैपिटल गेन? तो क्लैरिफाई कर दिया कि ULIP will always be a capital asset. तो चाहे वो 10% से ज्यादा हो, 10% से कम हो, वो कैपिटल एसेट ही मानी जाएगी. तो देयर विल बी ओनली कैपिटल गेन. क्लैरिटी है और इट वाज डिजायर्ड कर दिया उन्होंने. देखिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में कुछ इनकम जैसे सेक्शन 10(4)(d), 4(f), 4(h), ATLA, इनमें सब में सनसेट था दैट नो डिडक्शन विल बी अलाउड, नो एग्जेम्पशन विल बी अलाउड. डिडक्शन अंडर ATLA, एग्जेम्पशन अंडर 10(4) etc. will not be allowed after 31st March 2025. This has been extended to 2030. करना था, ऑब्वियस था. 10(4)(e) को भी 2030 तक कर दिया. ये काम तो हो गया. अब आया सेक्शन 10(10)(d) तो मैंने बता ही दिया आपको. अब यूलिप का मैंने बता दिया 10(10)(d) में क्या चेंज आया था. अब आइए सेक्शन 12AB सबसेक्शन 1, 12AB subsection 4 and section 13(3). ये चैरिटेबल ट्रस्ट का है. We all know that every trust has to apply for regular registration every 5 years. 5 साल में रेगुलर रजिस्ट्रेशन हर बार रिन्यूअल कराना है. You have to go for renewal every 5 years. The request was made that we are a small charitable trust and if we have to go for renewal every 5 years, इतना बड़ा compliance है, you know, it is practically a new registration. They ask so many information कि वो न्यू रजिस्ट्रेशन है. तो इन्होंने एक अमेंडमेंट कर दी दैट इफ योर ग्रॉस रिसीट और इनकम इन द पास्ट 2 years, ईच ऑफ द पास्ट 2 years डिड नॉट एक्सीड 5 करोड़. पिछले 2 साल में 5 करोड़ दोनों में, ईच ऑफ द 5 years 5 करोड़ से ऊपर नहीं है, तो देन रिन्यूअल भी आफ्टर एवरी 10 years एंड नॉट 5 years. कंप्लायंस कम कर दी. Small charitable trust may not go for renewal after every 5 years. They will go for renewal after every 10 years, provided last 2 previous years immediately preceding each year the receipt should not exceed 5 crore. ये सेक्शन 12AB(1) में डाला. अब 12AB(4) है पावर टू द कमिश्नर टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन. बहुत सख्त पावर है. एंड देयर आर स्पेसिफाइड वायलेशन. अगर कोई भी स्पेसिफाइड वायलेशन हो तो 12(4) में कंसिडर वो कर सकते हैं. भाई ऑब्जेक्ट नहीं फॉलो किए, मिस यूज किया फंड्स को, बिजनेस किया. दिस लास्ट में लिखा था द एप्लीकेशन इज नॉट कंप्लीट
or there is a false information in that. लॉ ने कहा एक आपने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए, एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है, उसके लिए भी रिन्यूअल वाला ही होगा ना, बाकी नया हुआ तो है ही नहीं, एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है, तो आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके 115 टीडी लगा देंगे. तो लॉ का हैज गिवन ए कंसेशन कि एप्लीकेशन कंप्लीट को वहां से ओमिट कर दिया. इट इज नॉट ए स्पेसिफाइड वायलेशन, मीनिंग देयर बाई if there is application is not complete and you have applied for renewal, they'll give you a chance to complete that information. They cannot cancel the registration just for one small technical mistake that the application is not complete. ये भी कर दिया. 13(3) में लिखा हुआ है that you cannot apply so much of the income which is applied for the benefit of the person referred to in 33 वो taxable हो जाता है, ऐसे exempt नहीं मिलता. Person referred to in section 13(3) में जो है उनके बेनिफिट के लिए आप इनकम अप्लाई नहीं कर सकते. उसमें क्लॉज भी है और वो बड़ा पुराना क्लॉज है. ए पर्सन हु हैज मेड सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू दैट ट्रस्ट एंड दैट इज द एग्रीगेट अमाउंट 50,000 इन द लाइफ टाइम. 50,000 रुपए टोटल कितने सालों से चले आ रहे हैं और हमें क्या रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कितने सालों का कि 50,000 रुपए का है. समथिंग वेरी सरप्राइजिंग. और फिर वो भी प्रॉब्लम नहीं थी, आपको जब रिटर्न भरनी होती थी उनके नाम देने पड़ते थे, उनके रिलेटिव के नाम देने पड़ते थे, और कंसर्न इज दे आर इंटरेस्टेड उसके भी नाम रिटर्न में डालने पड़ते थे. आप फॉर्म भर के देख लीजिए, उसमें तीनों चीजें मांगते थे उस पर्सन की जिसने 50,000 से ऊपर कंट्रीब्यूट किया. अरे कहां से आएगा? अमेंडमेंट मेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द एम्प्लॉय द क्लियर 1 लाख पर ईयर. 1 लाख से कम है तो ये 13(3) में नहीं आएंगे. और सेकेंडली एग्रीगेट अमाउंट ओवर द ईयर्स 10 लाख. कुछ तो रीजनेबल है, ये तो नहीं है ना 1 लाख का दिया तो मैं मान लूंगा पर्सन इंटरेस्टेड है, 1 से ज्यादा दिया तो, और एग्रीगेट 10 से ज्यादा दिया तो मानूंगा. लेकिन रिलेटिव के नाम नहीं देने, वो हटा दिया. नो क्वेश्चन ऑफ गिविंग द नेम ऑफ द रिलेटिव, और वो पर्सन इंटरेस्टेड नहीं माने जाएंगे. नो क्वेश्चन ऑफ कंसर्न इन विच दे आर इंटरेस्टेड, उसकी भी डिटेल नहीं देनी. So that बहुत simplification हो गया सर. It is now only those who are contributing. I'm not talking about author, trustee, manager. उनके लिए तो वो restriction है. I'm talking about any person who has given donation. Author, related वगैरह वो तो already covered ही है. If he is a author, he is a trustee, he is a manager, वो तो already covered है, उनके relative भी covered है. That you can't give benefit to them. वैसे तो 13(2) में सब कुछ हो जाता है कि अगर वो रीजनेबल है, आर्म लेंथ है तो 13(2) मना नहीं करता है. बट फिर भी प्रॉब्लम थी फाइल उनका नाम देना. अब जो पर्सन अदर देन ये वाले हैं, इफ दे हैव कंट्रीब्यूटेड मोर देन 1 लाख, नेम हैज टू बी गिवन एंड दे विल बी कंसिडर्ड एज ए पर्सन इंटरेस्टेड बेनिफिटेड. उनके रिलेटिव नहीं, कंसर्न नहीं. तो ये भी एक 13(3) की अमेंडमेंट बेनिफिशियल है, प्रॉब्लम नहीं करेगी. एक और बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिस जमाने में मैं पढ़ता था और जिस जमाने में आप पढ़ के आए हैं और जो बिल्कुल पढ़ के आए हैं उनको ये याद होगा. स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय whose income under the head salary exclusive of non monetary perquisite does not exceed 50,000 rupees. याद आ रहा है? 50,000 से ऊपर सैलरी नहीं है तो उसको अगर कार दी होगी तो वो माना नहीं जाएगा परक्विजिट. अरे मैं भाई 50,000 की सैलरी तो किसी की भी नहीं है साल की, सबकी ज्यादा है, और वो कार उसको कौन देता है? लेकिन चला आ रहा था. अब वो हटा दिया 50,000. नाउ दे से नॉन मॉनेटरी परक्विजिट विल नॉट बी taxable if his income under the head salary does not exceed the amount to be specified by the government from time to time. गवर्नमेंट अपने आप बोल देगी किस दिन क्या है. अभी 50,000 की लिमिट को हटा दिया. एंड सेकेंडली व्हेन यू गो फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया, 3 चीजें होती हैं उसमें. 1 इज मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, सेकेंड इज स्टे ऑफ द पेशेंट एंड 1 अटेंडेंट, एंड थर्ड इज ट्रेवल फ्रॉम इंडिया टू दैट कंट्री. एम आई राइट? पहली 2 तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन थर्ड में लिखा था फॉरेन ट्रेवल विल बी एग्जेम्प्ट ओनली व्हेन योर ग्रॉस टोटल इनकम डू नॉट एक्सीड ₹2 लाख. 2 लाख वाले की ग्रॉस टोटल इनकम को तुम अब्रॉड भेजोगे ट्रीटमेंट कराने के लिए, वहां पर भी लिख दिया अमाउंट टू बी
ये वैसे ही है जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 50 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। क्या खड़ा है, 50 रुपए का तो वो भी नहीं आता, वो बर्गर भी नहीं आता। 50 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, है ना बीबी? और सबने ये पढ़ा होगा 50 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड फॉर ए मैक्सिमम। और फिर सवाल भी आता था, उसको 150 रुपए दिया तो कितना टैक्स है बोला, और 3 बच्चे थे, आता था ना एग्जाम में। बताइए क्या है, हटा दिया उसको भी। ठीक है सर, ये 17 में किया। जो अच्छा काम किया वो 23(2) में किया है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस लॉ इज, if a house is occupied by you for your residence, or you could not occupy that house because you were employed elsewhere or carrying on your business and profession elsewhere, so this will be treated as annual value nil. पहले तो ठीक है, आप रह रहे हैं, annual value nil है, आप तो 2 घर अलाउड है, annual value nil है। दूसरा था, आपका कलकत्ता में घर है, वो माफ तब माना जाएगा जब आप ऑक्यूपाई नहीं कर सके बिकॉज आपकी पोस्टिंग लेट से दिल्ली कर दी गई, आसनसोल कर दी गई, कलकत्ता से बाहर करी, या यू हैव स्टार्टेड योर प्रोफेशन आउटसाइड कलकत्ता, तो खाली रखा हुआ है तो वो माफ कर देते थे। अब प्रॉब्लम ये है कि घर यही है, मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूं या कॉलेज का प्रिंसिपल हूं, आई बीन टोल्ड टू स्टे इन दी कॉलेज प्रीमाइसेस ओनली टू डिसिप्लिन वगैरह है। मेरा घर कलकत्ता में ही है और कलकत्ता में कॉलेज है, ये है, और वो कह रहे नहीं आपको यहाँ रहना पड़ेगा, और वो खाली पड़ा है। तो वो कहते थे ये सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, डीम टू बी लेट आउट है, बिकॉज यू आर एम्प्लॉयड इन कलकत्ता, तो यू, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है, ये जितने मिनिस्टर हैं इनके जो सेक्रेटरीज होते हैं, PS वगैरह, सारे उनके घर ही रहते हैं, उनके भी तो घर हो सकते हैं वहाँ, मतलब तो आया तो वहीं से, उनके भी घर हो सकते हैं। तो वो कहते हैं वी आर रिक्वायर्ड टू स्टे इन द प्रीमाइसेस ऑफ द मिनिस्टर। तो ये कैसे होगा? आप कहता फॉर एनी रीजन यू कुड नॉट ऑक्यूपाई, रीजन कोई नहीं देखा, नहीं किसी रीजन से ऑक्यूपाई नहीं कर सके। पुलिस वाले सारे थाने में रहते हैं, उनकी तो ड्यूटी 24 आवर्स है, दे मे बी हैविंग ए हाउस। सो ऑल दोज थिंग्स केसेस यू डोंट हैव टू टेल द रीजन, एनी रीजन है वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा इफ यू हैव केप्ट इट वेकेंट। और वैसे भी 2 घर अलाउड किए हुए हैं, तो ये 23 में अच्छा रिलैक्सेशन है कि नाउ इट विल बी ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड इवन इफ इट इज लाइंग वेकेंट, बट यू कुड नॉट ऑक्यूपाई फॉर एनी रीजन, कुड नॉट ऑक्यूपाई फॉर एनी रीजन, उसको सेल्फ ऑक्यूपाई, ये 23(2) में एक बेनिफिट अपने दिया है। नेक्स्ट चेंज है सर 44BBD, कोई हाउस प्रॉपर्टी, कोई चेंज नहीं है बिजनेस में, एक लास्ट चेंज आया है। ये क्या है? प्रेजेंटिव इनकम है। 44BBA भी है, BB भी है, ऐसी ये प्रेजेंटिव इनकम। देखिए क्या है, चाइना से अब हम माल मंगवाना कम कर रहे हैं। वी वांट दैट आवर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री शुड डेवलप इन इंडिया। उसके लिए हम कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पर लेते हैं किसी नॉन रेजिडेंट से, और यू मे टेक नो हाउ फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स विच में बी स्पेसिफाइड, तो उसकी नो हाउ हम लेने जाते हैं। अब द नॉन रेजिडेंट सेज that whatever amount I receive from you will be taxable in this country, and the rate of tax if it is a company will be 35%, नॉन कंपनी होगी तो 30 होगा। भाई ये तो बहुत हाई टैक्स लग रहा है मुझे, ठीक है मैं अपनी कंट्री में टैक्स दूंगा, लेकिन यहाँ तो बहुत हाई है। सो दे हैव गिवन ए प्रेजेंटिव इनकम स्कीम दैट इफ देयर इज ए नॉन रेजिडेंट हु हैज प्रोवाइडेड सर्विसेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी of electronic goods in electronic industry in India, or providing know-how for manufacturing of electronic goods in India to a non-resident. In that case, जितना उसको अमाउंट मिलेगा, full amount accrued or received, 25% of that amount will be his income, taxable under 25%. अगर उसको 2 करोड़ दिया तो 50 लाख इनकम है, टैक्स नहीं है, उस 50 लाख पे टैक्स दे दे। अगर वो 35% भी हुआ तो 10% से कम ही होगा। Am I right or wrong? 25 का 35% ही तो होगा, 25 का 35। अगर वो नॉन हुआ तो 30 होगा। तो एक बड़ा रिलैक्सेशन है that you don't have to pay more than 10% in India of the total amount which you have received, but they have not said 10% tax. बाकी में 10 लिखा है, क्या लिखा है? Income will be taken as 20, taxable income will be taken as 25% of the amount paid or received, और उसके ऊपर आप टैक्स देंगे। क्लियर है सर? ये भी 44BBD आया है।
कोई कैपिटल गेन में चेंज नहीं है, और जरा माइनर सी चेंज है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। 45(1)(b तो मैंने बता ही दिया। आइए नेक्स्ट चीज खतरनाक है, बहुत गलत प्लानिंग खत्म हो गई, वो है 72A एंड 72AA। 72A में लिखा है 1 में 72A1, 72A6, 72A6A। 72A में लिखा है when there is a merger or amalgamation, amalgamation or demerger, you are allowed to carry forward the losses of the amalgamating company for a fresh period of 8 years। 8 साल तक लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते, नए 8 साल तक। किसका? अमलगमेटिंग कंपनी का, या डीमर्ज्ड है तो डीमर्जिंग कंपनी का 8 साल तक लॉस करेगी। और इसी तरह रीऑर्गेनाइजेशन है सेक्शन 72A6। इफ ए कंपनी, if a sole proprietor is converted into a company, section 47(13), if a partnership is converted into a company, section 47(14), ये ट्रांसफर नहीं माना जाता। और उसमें भी लॉसेस ऑफ द जो सोल प्रोप्राइटरी और फर्म कैन बी कैरिड फॉरवर्ड। मैं अनअब्जॉर्ब नहीं बोल रहा कि अनअब्जॉर्ब तो वैसे भी अनरिलेटेड है। कैन बी कैरिड फॉरवर्ड मैक्सिमम पीरियड ऑफ, फॉर फ्रेश पीरियड ऑफ 8 years। इसी तरह कोई लिमिटेड कंपनी को आपने एलएलपी में बनाया, 6A लिमिटेड कंपनी थी, एलएलपी में कन्वर्ट कर दिया, अगर उसके जो लॉसेस थे दे कुड बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर ए फ्रेश पीरियड ऑफ 8 years। जितनी एनसीएलटी से कंपनी लेते हैं लॉसेस की वजह से ली जाती थी और फिर साथ ही अमलगमेट कर दी जाती थी। किससे? प्रॉफिट मेकिंग कंपनी से। जितनी भी एनसीएलटी से कंपनियां लॉस वाली ली और साथ ही उसको मर्ज कर दिया और प्रॉफिट वाली से, और 8 साल तक उसके लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो जाते थे। और फिर अगर नहीं हुए थे तो फिर दूसरे से मर्ज कर देते थे, फिर एक अगले साल 8 हो जाते थे। बात समझ में आए ना? कलकत्ते वालों को क्या समझाना, समझ में आ गया सर मैंने क्या कहा? 8 पहले कर लिए मर्ज करके, अब देखा कि नहीं हुए, या तो डीमर्ज कर दो 8 साल के लिए, या एक और किसी में मर्ज कर दो, अगले 8 साल हो गए, तो लॉसेस से कैरी पर होकर समझे थे। अब तो कह दिया है जो प्रीडेसेसर के लॉसेस का पीरियड था उतने ही पीरियड कैरी फॉरवर्ड होगा। ईच लॉस कैन बी कैरीड फॉर 8 years। अगर उसके 7 साल खत्म हो गए तो 1 ही साल कैरी फॉरवर्ड होगा, 8 हो गए तो खत्म हो गया, नए नहीं होगा, 5 हुए तो 3 ही कैरी फॉरवर्ड होगा, तो सारा काम ही खत्म हो जाना है। अभी तो वेवर का चक्कर पड़ा हुआ है, जो वेवर ऑफ लोन होते थे महिंद्रा एंड महिंद्रा के बाद, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि वो टैक्सेबल है कि नहीं। 28(4) में तो टैक्सेबल है, वहां तो लिख दिया टीडीएस नहीं कटेगा, बाकी तो टैक्सेबल है। तो बेड़ा गर्क हो गया ना, ये जितनी एनसीएलटी का काम ही खत्म। पहले लॉसेस के लिए मेनली एनसीएलटी होता था, एम आई राइट और रॉन्ग? लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए सभी उस कंपनी को खरीदते थे, चलाते थे थोड़ा था, लेकिन बाकी लॉसेस को सेटअप करते थे विद प्रॉब्लम। वो भी खत्म, डीमर्ज भी खत्म, और ये हम वो ठीक है, हम लिमिटेड से एलएलपी बना रहे हैं, प्रॉफिट है तो ठीक है, लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे एट। लॉसेस विल बी कैरीड फॉरवर्ड ओनली फॉर द बैलेंस नंबर ऑफ ईयर्स। ये क्लियर हुआ सर? सिमिलरली 72AA बैंकिंग कंपनी अमलगमेट होती थी, लॉस मेकिंग बैंकिंग का है उसको दूसरे से प्रॉफिट मेकिंग से कर दिया तो फ्रेश पीरियड ऑफ 8 years लॉसेस होते थे। नाउ इट विल बी अलाउड ओनली फॉर बैलेंस नंबर ऑफ ईयर। क्लियर है सर? 72A 72AA। अगला जो पॉइंट है, बहुतों को नुकसान हुआ, मतलब बच्चों को नुकसान हुआ, हमें तो फायदा ही फायदा है, और वो है नेशनल सेविंग स्कीम। देखिए नेशनल सेविंग स्कीम में हमें पैसा जमा कराया था, याद होगा, किसी का 15 लाख पड़ा है, किसी का 12 लाख पड़ा है, किसी का 20 लाख पड़ा है, इंटरेस्ट मिलता था, याद है। लेकिन विड्रॉ कराओ तो टैक्स लगता था, डेथ हो जाए और लीगल ईयर को मिले तो कोई टैक्स नहीं लगता था। तो हम तो कहते थे बच्चों को ही जाएगा, हम तो टैक्स देने वाले नहीं, को दे क्या 36% 40% दे के क्या मिलेगा हमें, हम नहीं देंगे, बच्चों को फ्री मिल जाएगा। लेकिन सडनली 29 अगस्त 2024 गवर्नमेंट ने नेशनल सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट देना बंद कर दिया। सर नोटिफिकेशन हैज कम, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड अंडर नेशनल सेविंग स्कीम ऑन और आफ्टर 29 August 2024। So representation was made to that government
When you are not paying interest, our money is lying with you. You had promised to give us interest every time. Now you have stopped giving us. So let us, please allow us to withdraw the money. Allah ho gaya. Proviso has been inserted under 80 CCA that you can withdraw the money. It will not be taxable in your hand at all. It will remain exempt. अब बच्चों को नुकसान हो गया ना, बच्चों को तो नुकसान हो गया, वो तो पैसा उनको आना था, अब तो उनको नहीं मिलेगा, हम तो जाके निकाल लेंगे, घूमना तो घूमेंगे, जो भी करेंगे, अब तो पैसा हमारा है। और मैं कई बार बोल के जा चुका हूँ, अपने लिए और अपनी बीवी के लिए उतना पैसा रखना जब तक कि मांगना ना पड़े। जिंदगी में हाथ आपका यूं होना चाहिए, यूं गया तो आप गए। इसलिए मैं तो कई बार कह चुका हूं, हम तो सैंडविच सोसाइटी है सर, माँ बाप से भी डरते थे, बच्चों से भी डरते हैं। एक आदमी खड़ा होकर कह दे वो बच्चे से नहीं डरता, खड़ा हो सर कोई, ऊपर वाले ही हो जाए कोई खड़ा, सारे बच्चों से डरते हैं, नहीं डरते। शादी हो गई आपने? एक खड़ा हुआ कहना मेरी शादी नहीं हुई है, मैं बैठ जा, वो तो बात तो एक ही हो गई। और तीसरा खड़ा हो गया था, मेरे बच्चे हैं, मैं कितनी उम्र का था, 4 साल का है, मैं कहा इंतजार कर तू यार। वो 4 साल में जमीन पे लेट जाता है सर कि मुझे ये लेना है, और आप लेके देते हैं उसको। क्या वक्त आ गया है सर, हम तो लोग जैसे ही बच गए। तो बच्चों को तभी देना है जितना फालतू हो। अपने होश आवास में अपने पास रखिए, अपनी बीवी के लिए भी रखिए, बहू भी पूछेगी, बेटा भी पूछेगा, जब तक आपके पास पैसा है। जब पैसा गया तो आप ओल्ड एज होम में चले जाओ, और कोई तरीका नहीं। तो अब ये पैसा आपका है, निकाल लीजिए, बहुत इंतजार कीजिए, निकालिए, जो मर्जी करिए, स्टॉक मार्केट में लगाइए, वापस ठीक हो रही है। वो नीचे आ गई थी, उसको ट्रम्प को कल तो इसलिए गिर गई थी, आज वो रुक गई है तो इसलिए ऊपर चली गई। तो डोंट वरी, वो पैसा खर्च करिए, रखिए, इन्वेस्ट करिए। 15-20 लाख तो है ही, क्यों अब रखते हो जब इंटरेस्ट ही नहीं मिलना? अब तो इंटरेस्ट मिलना ही नहीं है, तो विड्रॉ तो करना ही पड़ेगा। वहां बड़े बड़े क्या करेगा? अब बच्चे नाराज हो तो होने दो, पैसे तो हमारे हैं, हमने इन्वेस्ट किए थे, टेक आउट द मनी। हाँ जी सर, नहीं होगा, 194 गॉन ऑटोमेटिक। जब टैक्स नहीं लगेगा तो डीए बुक निकालेंगे कैसे? कईयों का लग चुका है, जिन्होंने अगस्त 24 से बाद निकाला था, अभी लॉ तो अभी आया, अभी फाइनल नहीं हुआ है, उनका भी वो क्रेडिट मिल जाएगा किसी ने तो पास होने दो। वैसे तो हो जाएगा, लेकिन वहां पर अभी तक पोस्ट ऑफिस को इंस्ट्रक्शंस नहीं गई है। जब तक लॉ नहीं बन जाएगा तब तक इंस्ट्रक्शन कहां से जाएगी? हाँ, 24 मार्च की इंतजार कर लीजिए सर, 24-25 तक पास हो जाएगा, और पास होते ही आप निकाल लीजिए। वो तो कह रहे हैं 29 अगस्त से नहीं होगा, इट विल नॉट बी टैक्सेबल फ्रॉम 29 अगस्त। अगर आपने विड्रॉ भी कर लिया तो नहीं होगा, बट if already TDS has been deducted, you will get the credit somewhere else. There is no problem. 194EE is practically finished. जो विड्रॉ का करते थे वो प्रैक्टिकली फिनिश हो गया। अरे 20% TDS काट लेते थे वो, और बाद में बाकी बाद में देना पड़ता था। So now NSS is gone. Clear है सर? No, nothing to be taxed. Kindly withdraw the moment this what is that passed? Act is passed. निकाल तो अभी भी सकते हैं, अभी TDS कट जाए। जब एक्ट पास हो जाएगा तो टीडीएस अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि इट इज एग्जेम्प्ट। क्लियर है सर? क्लियर। आगे चलते हैं। 80 CCD, वो जो ओल्ड रिजीम में जाएगा उसी के लिए है। 80 CCD में आपको याद है, 80 CCD 1B आप एक्स्ट्रा 50,000 का डिडक्शन ले सकते हैं। अब उन्होंने एक नया स्कीम निकाली है, NPS वात्सल्य स्कीम। वात्सल्य मीन्स फॉर योर चिल्ड्रन। आप माइनर चिल्ड्रन हैं, आप वो पैसा उनके नाम पे भी जमा करा सकते हैं। वात्सल्य स्कीम उनके, हाँ मैक्सिमम वही 50 की डिडक्शन है, वही 80 है। अपने नाम कराओ या उनके नाम कराओ, जब तक वो माइनर है वो आप गार्डियन या पेरेंट हैं। जब वो मेजर हो जाएंगे द अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू देयर अडल्ट अकाउंट, हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाए तो पैसा मिल जाएगा। अब ये माइनर के नाम पे जमा कराया, तो उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग द टेन्योर, अभी खत्म नहीं हुआ, बाद में तो टैक्स लगना ही लगना है, 25% ऑफ द कंट्रीब्यूशन यू कैन विड्रॉ
फॉर एनी रीजन उसकी एजुकेशन के लिए, उसके कुछ के लिए विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन फ़ायदा तभी है ना जब आप ओल्ड रजीम में हो। अब ओल्ड रजीम में है कौन? कोई भी नहीं। चलिए, ATIAC वो जो स्टार्टअप थे जिनका सनसेट हो रहा था 31 मार्च 25, बिकॉज दे वर अलाउड टू कम एस्टेब्लिश आफ्टर 1 अप्रैल 2016 बट बिफोर 1 अप्रैल 2025। और 100 करोड़ से ऊपर टर्नओवर नहीं होना चाहिए, एलिजिबल स्टार्टअप होने चाहिए, 100% रिडक्शन फॉर ए पीरियड ऑफ 3 असेसमेंट ईयर आउट ऑफ 10 ईयर्स उनको है। ATIAC वो सनसेट था, एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 2030, वो भी एक्सटेंड कर दिया गया। दिस इज ATIAC। अब आइए 87A। किसी ने सोचा था कि 7 का 12 लाख हो जाएगा? कभी किसी ने सोचा था? हम लोगों ने भी कहा होगा तो होगा 8 कर देंगे, मैक्सिमम 10 लाख कर देंगे। ये 12 कैसे कर दिया? समझ नहीं आई। ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। नो टैक्स ऑन 12 लाख। हाँ बताइए सर। केजरीवाल के बारे में कुछ नहीं बोल रहे आप। है यार सर, ये काटने बाद में कुछ नहीं है। 1 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट को। क्या चीज? वो किसने किया? स्टेट ने किया कि सेंटर ने किया? 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, हर बार नहीं पड़ता। ये 12 लाख की वजह से 5% किया है। नहीं, क्या बात कर रहे हैं सर? कहता हम कभी खुश नहीं होंगे, हम तो खुश हो ही नहीं सकते। सर मैं एक छोटी सी चीज बोल रहा हूं। ये छोटी नहीं है सर, महंगाई तो बहुत बड़ी हो गई। मेट्रो रेलवे पूरी भारत में चल रही है, 5% डिस्काउंट कम कर देना अक्टूबर महीने से, कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अरे सर 1 मिनट बैठिए सर। वो रेवेन्यू जनरेट होकर कहां जा रहा है? जा रहा है स्कीम में। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ कभी देखा था? क्या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखा था? गडकरी ने 1 पैसा मांगा नहीं आपसे, और कितनी रोड बना दी है सर। सर कमाल है यार, कितनी रोड बना दी गडकरी ने। तब नहीं बोल रहे क्या हुआ? फिर कहेंगे टोल लेता है, टोल लेता है। अब टोल लेता है, पैसे तो आपके पहले खर्च किए हैं सर। कितना पेट्रोल बचा है आपका? कितनी गाड़ियां का हुआ है सर। मैं यहां मैं कोई बीजेपी का नहीं हूं, मैं ना बीजेपी की ना TMC। मुझे तो वैसे ही कलकत्ते आवते डर लगता है। मैं नहीं बोल रहा कुछ भी, मैं सरकार के फेवर में नहीं बोल रहा, मैं आपके फेवर में बोल रहा हूं। अरे नौकरी लगती है सर, 9 लाख का पैकेज बड़ी मुश्किल से मिलता है। 9 लाख का पूरा माफ है, 12 लाख का मिला पूरा माफ है, वैसे तो 6 लाख का मिलता है। अरे सुन तो ले सर, आप हो सकता है आप TMC के हो, मुझे नहीं पता। सर मेरे को क्या लेना देना? अरे आगे तो सुनिए। 1.5 करोड़ का 2 करोड़ का टर्नओवर कर लो, 6% अगर आपका टैक्स है तो 1 पैसा टैक्स नहीं है। 2 करोड़ का 6% है। अगर 1.5 करोड़ का टर्नओवर करोगे 8% लगाओ, पूरा टैक्स नहीं है। क्या बातें कर रहे हैं सर? 1.5 करोड़ का टर्नओवर 8 कैश का कर रहे, 8% कितना हुआ सर? 12 लाख टैक्स है। नहीं, वो सर आप बाद में बोल लेना सर। यहां वोट नहीं हो रही है। मैं तो ये बता रहा हूं कि 1.5 करोड़ का टर्नओवर पर 1 पैसा टैक्स नहीं है, 8% बना होगा। कमाल हो गया। ये ट्यूशन क्लासेस, ये वो क्लासेस क्या है, कुकरी क्लासेस, ये ब्यूटी पार्लर, इतने तो ब्यूटी नहीं है जितने ब्यूटी पार्लर की इनकम दिखाते हैं। 12 लाख रुपए तक माफ है। 12 लाख। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस करता है, 20 लाख रुपए साल का, अगर वो GST में नहीं जाना चाहता, 20 लाख में 60% दिखा दे, 12 लाख माफ है। 12 लाख माफ है 20% में। 24 दिखाएगा GST में है तो 12 लाख माफ है। 50% ही है ना सर। एक कोई भी प्रोफेशनल देख लो, बिगिनिंग में इतना रेवेन्यू नहीं आता है, 1 पैसा टैक्स नहीं देना उसने, 1 पैसा टैक्स नहीं देना। पूरा 12 लाख कोई कम नहीं होता। और सबको, आपको भी मिलकर
जो 24 लाख से ऊपर हैं, मिनिमम 1,14,400 रुपए का फायदा हुआ है, और मुझे 1,43,000 रुपए का फायदा हुआ है। 12,000 रुपए महीना, और सबको 10-10 हजार रुपए महीने का फायदा। स्लैब देख लो, 24 लाख जो इनकम, वो बात अलग बात है, दिखाते कितने मुझे नहीं पता। 24 लाख इनकम दिखाओ, 1,14,400 रुपए का फायदा हो। अरे यार कुछ तो मानो, कुछ तो मानो। ऐसा तो नहीं है। 1 लाख करोड़ रुपया कहां से आएगा? कंप्लायंस से आएगा। छोड़ेंगे नहीं, ये मैं आपको बता दूं। उनको आपके बारे में सब पता है, सब इंफॉर्मेशन है। इसलिए बोला उन्होंने, ट्रस्ट फर्स्ट स्क्रूटनी लेटर। यही बोला सर, ट्रस्ट फर्स्ट स्क्रूटनी लेटर। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, कभी किसी ने नहीं सोचा था। इतना रिलीफ जिंदगी में पहली बार देखा है। इतना रिलीफ जिंदगी में पहली बार देखा है। इतना कुंभ भी पहली बार देखा है। मैं भी गया हूं। ये जरा सी बात का लोगों ने वंडर बना दिया। जाके देखिए 10 आदमी इकट्ठे करने पड़ते तो क्या हालत होती है। इतने करोड़ों लोग जा रहे हैं। अब क्या हुआ वो मैं नहीं कहना चाहता। क्या मैं कहना चाहता हूं कि मुझे उसका नहीं ले देना। ये जो बजट आया है, ये बजट कभी जिंदगी में नहीं आया था। मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे बाकी कुछ नहीं। सर 12 लाख रुपए बना लो वाइट के, कोई कुछ नहीं कह रहा। और पिछली बार आपने वाइट के कर लिया कैपिटल गेन, 12.5% में कैपिटल गेन बन रहा है। और क्या चाहते हैं सर? सरकार कहां से पैसा लाएगी? 12.5% कैपिटल गेन सर, कितना फायदा हुआ उसमें? मैक्सिमम 15 ही है ना, सरचार्ज वगैरह मिलाकर। अरे कन्वर्ट, यहां तो इतना सोना बिकता है कि उतना कभी आज तक किसी ने सोना बेचा नहीं है, और वो सोना ही बिकता है। समझ में आ गई ना? सोना कोई बेचता नहीं है, भगवान ना करे किसी ने बेचा हो, मेरे को नहीं लगता, लेकिन रोज ही बिकता है। समझ में आ गया ना सर? 12 लाख इतने में वाइट हो रहा है। और सर वाइट की कीमत है, नंबर 2 की कोई कीमत नहीं है। नंबर 2 तो आप खुद बिगड़ोगे या बच्चे बिगड़ेंगे। नंबर 1 काम आएगा। वो जमाना चला गया जो था। लेट अस टॉक अबाउट फॉर द कंट्री एज ए होल। Whoever may be the prime minister, I'm not that concerned. But country as a whole में प्रोग्रेस हो रही है। And we should appreciate, अगर है तो कोई भी गवर्नमेंट करे, मुझे नहीं, स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, मैं कुछ नहीं कह रहा। But nobody expected such type of a budget. मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे भी 10-12 हजार रुपए महीने का फायदा हो, गरीब को भी 5 हजार रुपए महीने का फायदा हुआ, एक 60 हजार रुपया फायदा हुआ। एक गरीब आदमी के घर में 5 हजार एक्स्ट्रा जा रहे हैं, और मियां बीवी काम करते तो 1,20,000 एक्स्ट्रा जा रहे हैं। करते हैं ना जी, दोनों मियां बीवी काम करेंगे तो दोनों को 5-5 हजार का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अरे हद है सर, आपको ये इंपॉर्टेंस मिली। अरे नौकरी मिलती है, और कितना रिलीफ हुआ एम्प्लॉयर को। 1 करोड़ 90% तो उसके एम्प्लॉय 1 लाख से कम लेते हैं, तो टीडीएस है ही नहीं, उसको टीडीएस भी नहीं काटना है। कंप्लायंस कितनी कम हो गई आप देखिए ना, कंप्लायंस कम होगी कि नहीं होगी? 192 में अगर उसकी 12 से कम है या 12.75 है, 12 भी नहीं, टीडीएस काटना है, तो कितना कंप्लायंस कम हुआ, कितना से बढ़िया हुआ। मैं तो उस एंगल में, मैं सर पॉजिटिव साइड देखता हूं, नेगेटिव साइड मेरे देखने की आदत नहीं है। पॉजिटिव साइड ये है कि दिस इज बाई फार द बेस्ट बजट, and he has given benefit to each and every one, right from the poor man to the top man. मिडिल क्लास का तो करा ही है, मिडिल क्लास ही है ना 24 लाख तक तो। अरे 1,22,000 अगर 14,000 बच गया, घर में अगर एक्स्ट्रा आ गया और मियाँ बीवी दोनों काम करते तो 3 लाख रुपया बच गया। सर टैक्स चुकता है, और 3 लाख काम आएगा, उसका फायदा होगा, स्पेंडिंग होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, कंट्री तो ग्रोथ करेगी करेगी। तो ये है सर, मैं 112 वो जो 115 BAC 1A और दूसरा, हाँ ये बात तो पहले भी क्लियर थी, लोग मान नहीं रहे थे कि स्पेशल रेट वाला उसका रिलीफ नहीं है, उसमें तो देना ही पड़ेगा। वो तो पहले भी है, वो पहले क्लियर नहीं था, प्रोवाइजो डाल दिया।
The proviso has been inserted, provided that deduction under this section will be allowed only on that part of income which is taxable under 115 BAC 1A, जो रेगुलर वाली। स्पेशल रेट पे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये तो क्लियर कर दिया उन्होंने। तो क्लियर है सर? एनीथिंग विच इज नॉट क्लियर? और सुनिए सर, हमने 2000, पहले तो एक चीज और बता दूं, ये जो बिल है ये डायरेक्ट टैक्स बिल नहीं है। जब मैडम ने बोला था पिछली बार जुलाई में हम डायरेक्ट टैक्स बिल ला रहे हैं, मैं गया था, मैडम के पास तो नहीं जाता, डिपार्टमेंट गया था, मैं कि व्हाई आर यू कॉलिंग इट डायरेक्ट टैक्स बिल, व्हाट यू मीन बाय डायरेक्ट टैक्स बिल? कहते क्या मतलब है? मैं कहा एक तो आपने निकाला डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास, क्या ये डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास है? ये तो इनकम टैक्स विवाद से विश्वास है। क्या उसमें वेल्थ टैक्स अलाउड है? देन व्हाई आर यू कॉलिंग इट डायरेक्ट टैक्स? इस बार मैडम ने बोला हम इनकम टैक्स बिल ला रहे हैं। नोटिस किया आपने? बोला इनकम टैक्स ला रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स नहीं है, कोड वोड कुछ भी, इनकम टैक्स बिल है। और आपको कुछ समझ में आए तो एक और चीज बता दूं, वर्ड इनकम टैक्स बोला, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं आएगा। नहीं तो डायरेक्ट टैक्स होता तो इनडायरेक्ट टैक्स भी घुसा सकते थे। नाम क्या रखा है? इनकम टैक्स बिल। ये वही है जो हमने दिया था, 274 सेक्शन हमने दिया था, उसको अब अमेंड कर रहे हैं। जो 6 साल तो हो गए दिए हुए, उसकी भी चेंजेस आ गई और भी कुछ और चीजें डालनी है, वही सेक्शन है। गलती उनको यही करी है, 20 सेक्शन इसको दे दिए, 20 इसको दे दिए, 20 इसको ग्रुप बना दिया। अरे सर लिंक होता है एक का लास्ट में, ये ग्रुप क्यों बनाया? लेकिन आ रहा है, ये आया है, पास नहीं होना है अभी। कभी सोचो लग गया, कुछ नहीं, ये तो अभी आएगा, डिस्कशन होगी, मे बी सिलेक्ट कमेटी को चला जाए, हमसे सजेशन ली जाएंगी, फिर डिस्कशन होगा। 26-27 का जो आना आ चुका है वो तो आ चुका, जो ये बजट आ गया वो अभी नहीं आएगा, सिर्फ बिल पेश कर दिया जाएगा, पास नहीं होगा। पास तो जाके अगले साल होगा या उससे अगले साल होगा, या वही कह रहे हो ना, 27-28 वो ना भी करे तो भी सबसे सजेशन आएंगे, या असेसमेंट या 27-28 से आएगा या 28-29 से आएगा, अभी नहीं आएगा। 26-27 में कुछ नहीं आना, सिर्फ आपको दे दिया। सर कितनी खुशी का काम है, काम बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मेरी दुकान भी चलेगी और आपकी भी चलेगी। सर नया लॉ पढ़ना पड़ेगा। इस कंट्री अगर जीएसटी को सक्सेसफुल करने वाला कोई है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है कि नहीं है बताओ? इसीलिए नया लॉ आएगा, हम पढ़ लेंगे और हमें नई चीज मिलेगी तो हमें काम भी मिलेगा नया। वक्त जब नई चीज आती है हम पढ़ लेंगे, हमें पता, हम पढ़ लेंगे। वाक्यों का क्या होगा मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। तो इनकम टैक्स बिल से नई चीज आने में हमेशा काम बढ़ता है। वो दिक्कत होगी, हम पुराने लोगों को पुराना सेक्शन याद रहेगा और नया भी आएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अच्छा लॉ आ रहा है, ब्रिटिश इंग्लिश नहीं है, इंडियन इंग्लिश है, सिंपल इंग्लिश। ये नॉट विद स्टैंडिंग, कोई प्रोवाइजो नहीं है, कोई प्रोवाइजो नहीं है। वैसे तो 1961 में भी कोई प्रोवाइजो नहीं था, हमें ने डलवाया था। अब ये जो प्रोवाइजो हम ही डलवाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, समझ में आ गया? अभी कोई प्रोवाइजो नहीं, एक्सप्लेनेशन है बट देयर इज नो प्रोवाइजो इन इट। सो मैं ये कह रहा हूं ये जो लॉ है, इनकम टैक्स बिल आ रहा है, ना कि डायरेक्ट टैक्स बिल, इनकम टैक्स बिल। और ये भी जो आ रहा है ये अभी पास नहीं होगा, अभी डिस्कशन के लिए छोड़ दिया जाएगा। ये मैं बता, तो ये मैं आ रहा हूं। देखिए हमने 2019 में एक रिक्वेस्ट करी थी, सर हम लोगों की रिटर्न जाती है, सम इनकम इंटेंशनली रन इंटेंशनली हमने दिखाई नहीं, भूल गए। अब आपने कह दिया 31 दिसंबर के बाद रिटर्न भी रिवाइज नहीं हो सकती, तो कभी भूल गए तो क्या होगा? वो असेसमेंट रीअसेसमेंट का चक्कर पड़ेगा, पेनल्टी पड़ेगी, ये पड़ेगा। सर कुछ ना कुछ नया चीज निकालना। हमने कहा मॉडिफाइड रिटर्न कर दो, उसका नाम मॉडिफाइड ना रख के अपडेटेड रख दिया है, वही है मॉडिफाइड। हमने कहा था 1 साल की है तो 10%, 2 साल की है तो 20%। वो नहीं माने, 25-50 कर दिया ऑफ द टैक्स प्लस इंटरेस्ट, 25-50 ऑफ द टैक्स एंड इंटरेस्ट, जो उतने एडिशनल इनकम का टैक्स एंड इंटरेस्ट का, उसका एक्स्ट्रा 25% ऑफ द टैक्स। सर 90 लाख रिटर्न रिवाइज हुई है 2 साल में, 90 लाख रिटर्न। अरे छोटे थोड़ी रिवाइज कर रहे हैं, 90 लाख। उसमें साथ में कई चीजें और भी आ जाती है,
रिवाइज करो तो और भी इंफॉर्मेशन जो नहीं है वो डाल दो। बात समझ में आया? इंफॉर्मेशन भी डल गई और थोड़ा इनकम भी बढ़ गई, 90 लाख। इसी वजह से उन्होंने ये पीरियड 2 ईयर का 4 ईयर कर दिया। थर्ड ईयर यू वांट टू डू इट, 60% ऑफ द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन द एडिशनल इनकम। 60 नहीं है, 30 का 60 है सर। 60 थोड़ी है, 30 मैक्सिमम है, उसका 60 है और इंटरेस्ट का भी 60 है। अगर चौथे साल करना है तो 70% दो, लेकिन चौथे साल की कंडीशन है 148 का एक का शो कॉज नहीं आना चाहिए। शो कॉज आ गया तो रिवाइज नहीं कर सकते, कर सकते हैं। शो कॉज आने के बाद उसने ड्रॉप कर दिया 148(3) में कि नहीं जी फिट केस नहीं है, तो भी कर सकते हैं। तो 4 साल के रिटर्न रिवाइज का कितना फायदा होगा। हम आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं कि जो गलती हो गई है सुधार लीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा टैक्स दे दीजिए। अगर एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे तो कोई फिर सारे ही नहीं सुधारेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा टैक्स दे दीजिए और अपनी जान छुड़ाइए, कोई पेनल्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो 4 साल, 4 ईयर इज ए बिग पीरियड। वैसे भी रीअसेसमेंट 3 साल ही है ना, चौथे तो अबाव 50 लाख का है, तो अबाव 50 लाख का उनको फिट करेगा तो वो उधर जाएंगे, नहीं फिट करेगा छोड़ देंगे 50 से नीचे तो चले जाना। सो माई पॉइंट इज अब रिटर्न इज ए वेरी गुड कॉन्सेप्ट फॉर दोज हु आर ऑनेस्ट या लेटली बिकम ऑनेस्ट। उनके लिए कर दो कि बना दो कि भाई करो अपनी जान छुड़ाओ। दिस इज 139(8)(a) रेड विद 144(b). ये बी के साथ आया है और अच्छी चीज आई है, कोई गलत चीज नहीं है। मैंने बताया आइए, क्योंकि उनके पास सब इंफॉर्मेशन है, इसलिए टीडीएस को उन्होंने क्या किया है, थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा दी है। उनको पता है हमारे पास सब कुछ है, 1-1 रुपए का डिविडेंड पता है, 1 रुपए का इंटरेस्ट पता है, क्या नहीं पता उनको, एवरीथिंग इज विद देम। सो दैट सेड लेट अस रिड्यूस द कंप्लायंसेस। भाई छोटे छोटे के अमाउंट की मत काटो। जैसे 193 आज तक उसमें कोई वो नहीं है थ्रेशोल्ड, सिर्फ एक चीज की थी, डिबेंचर्स इशूड बाय ए पब्लिक कंपनी इन विच पब्लिक आर इंटरेस्टेड, 5,000 की थी। अब फॉर ऑल 193 10,000, नो टीडीएस ऑन स्लैब ऑफ 10,000, उसके बाद कटेगा। 194 ठीक है, 90 डिविडेंड 5,000 रुपये था, अभी 10,000 कर दिया। कोई नहीं को फायदा हुआ, कम से कम कंप्लायंस कम हुई उनकी। इंफॉर्मेशन तो अब उनके पास है, 1 रुपए की भी है, 2 रुपए की भी है, 10 की भी है, लेकिन कंप्लायंस वर्क तो कम हुआ। जो छोटे डिविडेंड है 10 से नीचे, उसका टीडीएस नहीं कटेगा। 194(a) सीनियर सिटीजन 1 लाख नो टीडीएस। टीडीएस जो 1 लाख ऑन द एफडी है, कोई टीडीएस नहीं है। दे हैड टू रन पिलर एंड पोस्ट कि यार ये इनका टीडीएस कट गया, भागो 15G 15H दिया, और कई बार वो भी आता है। 40 का 50 कर दिया, और जो 5 होता था एनी अदर केस 10 कर दिया। 194(b) लॉटरी विनिंग ऑफ प्रेजल वगैरह, उसका 10,000 रुपये इन एग्रीगेट था, 10,000 रुपये पर सिंगल ट्रांजेक्शन। हॉर्स रेस 10 रुपये एग्रीगेट था, सिंगल ट्रांजेक्शन। 194(d) इंश्योरेंस कमीशन 15 का 20 कर दिया, 15 का 20 कर दिया, करा है ना। 194(h) नॉर्मल कमीशन 15 का 20 कर दिया। 194(j) जो ये चार्टर्ड अकाउंट 30 का 50 कर दिया, मैंने एक जान के छोड़ा है। 194(k) 5,000 का 10,000 कर दिया यूनिट का। 194(LA) 250 का 5 कर दिया। 194(I) 50,000 2,40,000 का क्या किया? बिल्कुल गलत, 6 लाख नहीं है, 6 लाख नहीं है, 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ है, 6 नहीं है सर। आपने जनवरी में किराए पे दिया घर 80,000 रुपये महीना, 3 महीने का 240, पहले टीडीएस नहीं कटता था। अब आपने 3 महीने के लिए दिया 80,000 रुपये महीना, हर महीने टीडीएस कटेगा 50 से ऊपर। इट्स नॉट 6 लाख। वो मैडम गलत बोली वहां पर, वो तो जान के बोलते हैं ना कि फेवर में, पूरा साल का है तो 6 लाख है, अदरवाइज 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ है, पर मंथ और पार्ट, या तो बड़े पार्ट ऑफ द मंथ। समझ नहीं रहे, ये जो मेले वेले लगते थे वहां दुकान दे दी थोड़े दिन के लिए, वहां उन्होंने दुकानें खोल ली और उसके पैसे ले लिए 15 दिन के 20 दिन के लिए, लगा लो यहाँ पर स्टॉल लगते थे ना, स्टॉल लगा लो, तो वो 240 से नीचे होता था तो टीडीएस कटता ही नहीं था।
अब तो 50,000 से ऊपर होगा, चाहे वो 15 दिन का हो, टीडीएस कटेगा। पार्ट ऑफ द एक दिन का हो तो भी टीडीएस कटेगा। ये प्रदर्शनियां नहीं लगती, एग्जीबिशन, वहां स्टॉल लेते हैं ना, तो वो भी तो 50 से ऊपर होगा तो टीडीएस कटेगा। सो 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ है सर। 6 लाख नहीं है, 6 लाख नहीं है। 6 लाख बन जाएगा अगर 12 महीने का होगा, बट इट इज 50,000 पर मंथ। सो बी केयरफुल अबाउट, डोंट से 6 लाख, इट इज 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। से ये 194 आई कर दिया है। आगे चलते हैं सर। 206C पहले 1G कर लेते हैं। आप बाहर जाते थे, फॉरेन ट्रेवल 7 लाख के ऊपर 20% कटता था, टीसीएस होता था। 7 रेज टू 10 लाख। बच्चा पढ़ने गया है, लोन लेके आपने पैसा दिया उसको पढ़ने के लिए, तो वो भी कहते थे 0.5% टीसीएस कलेक्ट करो, हटा दिया और बाकी सब 7 लाख की लिमिट 10 लाख कर दी। वो टिम्बर अंडर ए फॉरेस्ट लीज और टिम्बर अदर देन ए फॉरेस्ट लीज, उसमें 2.5 था, उसको 2% कर दिया। लेकिन उसमें एक और इंपॉर्टेंट थी, उसमें लिखा था अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस बहुत होते हैं, तो ट्रेडर को भी कहते थे टीसीएस कलेक्ट करो, ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, इसे करना पड़ेगा। अब लिख दिया फॉरेस्ट प्रोड्यूस को डिफाइन कर देंगे, और अंडर ए फॉरेस्ट लीज होगा तो टीडीएस कटेगा, नहीं तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस अदर देन फॉरेस्ट लीज पे नहीं होगा तो टीसीएस नहीं करेंगे। ये 206C 1 में चेंज किया है। देखिए ये भी अच्छी चीजें हैं। अभी तो कुछ चीजें मैंने आपको बताई नहीं है, वो भी बताता हूं। टीपीओ, ट्रांसफर प्राइसिंग। आप ट्रांसफर प्राइसिंग जो इंटरनेशनल टैक्स है या डोमेस्टिक स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है, ट्रांसफर प्राइसिंग का टीपीओ के पास जाता था, वो डिटर्मिनेशन करता था और फिर हर साल डिटर्मिनेशन होता था। अब एओ, आप टीपीओ के पास है तो उसको एक एप्लीकेशन दे दीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए कि भाई मुझे एक सर्टिफिकेट दे दो, मेरी कोई कंडीशन चेंज नहीं होने वाली, कि ये अगले 2 साल भी ये जो है वैलिड होगा, जो डिटर्मिनेशन आप ट्रांसफर प्राइसिंग की करेंगे, अनदर 2 years इट विल बी वैलिड। टीपीओ वेरीफाई करेगा, कंडीशंस को इंपोज कर सकता करेगा, एक सर्टिफिकेट दे देगा कि आपने एक्सरसाइज करा है और मैं सेटिस्फाइड हूं, तो जो भी डिटर्मिनेशन एएलपी का है वो अगले 2 साल भी वैलिड होगा। अब एओ कर रहा है, करने दीजिए। अगर बाद में उसको ये टीपीओ की रिपोर्ट आ गई, सर्टिफिकेट आ गया, तो वो 155(21) में रेक्टिफिकेशन उसको करना पड़ेगा और वही लेगा, वो कोई नहीं, अगर वो रेफर भी करेगा इट विल नॉट बी एग्री। एक बार सर्टिफिकेट मिला तो एओ कुछ नहीं कर सकता, 3 साल के लिए उसको वही मानना पड़ेगा। ये सिंप्लीफिकेशन है सर, ये सिंप्लीफिकेशन है जो इन्होंने ट्रांसफर प्राइसिंग में भी कर दी है। इजी था। आगे चलते हैं। सबसे बड़ा तो करा, पिछली बार आपको बोला था कि टीडीएस नहीं कटा, जमा नहीं कराया तो प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर देते थे सर ड्यू डेट के बाद। लास्ट टाइम एक बेनिफिट दे दिया था, इफ यू डिपॉजिट द टीडीएस सो डिडक्टेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द क्वार्टरली रिटर्न, तो हम आपको प्रोसिक्यूशन ही लॉन्च करेंगे। इंटरेस्ट तो लेते ही, पर नो प्रोसिक्यूशन। दैट वाज फॉर टीडीएस। दिस टाइम 276BB डालकर टीसीएस का भी कर दिया है कि भाई अगर टीसीएस कलेक्ट किया, जमा नहीं कराया, कोई बात नहीं, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द क्वार्टरली रिटर्न इफ यू आर एबल टू डिपॉजिट पे इंटरेस्ट, बट वी विल नॉट लॉन्च एनी प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट यू। ये भी सिंप्लीफाई कर दिया। कुछ पीरियड बढ़ा दिए, जैसे 271AA है, जब आप इम्यूनिटी 270 में असेसमेंट हुई, 270 कहते हैं जी आप पेनल्टी मत लगाओ, मैं टैक्स दे देता हूँ, इंटरेस्ट दे देता हूँ, कोई पेनल्टी मत लगाओ, अलाउड है। आपको 1 महीने में एप्लीकेशन देनी पड़ती है, वो 1 महीने में उसको जवाब देना पड़ता था, और 1 महीना बहुत कम था, उन्होंने वहाँ 3 months कर दिया है। पेनल्टी लगाने का भी था 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ 275 में, अब लिख दिया 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। अपने बेनिफिट में किया ये, फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। जहां जहां पर मंथ था वो क्वार्टर कर दिया। ये थोड़ा बहुत टेक्निकल चीजें जो चेंज करी है, पर मैं आपको बता रहा हूं 99% मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अभी भी कोई पॉइंट रह गया हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन यू हैव इन माइंड। वेरी गुड क्वेश्चन। मैं जब गया था 6 महीने पहले, अगस्त सितंबर में, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम इसको चेंज करेंगे, नहीं किया है। 10 दिन दे दीजिए, क्योंकि ये बिल आ रहा है
जब बिल आने के बाद खाली होंगे फिर हम जाएंगे कि भैया इसका क्या किया आपने। कैलकुलेशन ऑफ सैलरी बिकम्स ए डिफिकल्ट प्रोपोजिशन, तो कुछ करिए। अभी उन्होंने किया नहीं। रिप्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूट से भी जा रहा है और मेरा तो पर्सनल जाएगा ही जाएगा, मैं मिल के आऊँगा, बट अभी नहीं, क्योंकि अभी बिल आ रहा है। जब तक बिल नहीं आएगा वो बिजी है। आफ्टर द बिल हैज कम, बिल कम्स, आई विल गो एंड सी टू इट कि कोई ना कोई इसमें अमेंडमेंट डालें, वरना जाएगा नहीं। ये मत सोचना जाएगा, वो 20,000 तो वैसे बहुत अमाउंट है, शायद 50 कर दे, जाएगा नहीं। अच्छा एक और चीज बता दूं, टीडीएस के जितने भी प्रोविजंस हैं सब 1 अप्रैल से। वो पहले होता था जुलाई में होगा और जुलाई वाला अक्टूबर में होगा। अरे जब बजट पास हो गया मार्च में तो जुलाई क्यों, वो पुराने जमाने का चला आ रहा था। ऑल चेंजेस विच हैव टेकन प्लेस इन टीडीएस इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, इज एप्लीकेबल 225, नॉट फ्रॉम जुलाई और सो। 1 अप्रैल से सारी टीडीएस की चेंजेस आ जाएगी। 1 अप्रैल, ये भी नोट कर लीजिए, 1 अप्रैल। और वो जो हाउस प्रॉपर्टी वाला है वो तो करंट ईयर से शुरू हो गया। हाँ जी, है वो तो देना ही है। 194 सी ई टी फॉर टाटा नगर का आप कह रहे हैं कि 15G दे दें, यही कह रहे हैं ना? हाँ जी, ये मैं बोल रहा हूं। हम तो जाके ये भी कहेंगे अब 12-12 लाख माफ हो गया है तो सर कुछ देखो, इंतजार कीजिए। जी है या नहीं है, सबसे पहले तो ये लास्ट में जो सैलरी निकाली जाती है उसका जमा कैसे कराएंगे, करें। वैसे सैलरी हर महीने होती है, लेकिन हम तो 40B का एडवांटेज लेकर, वो कोटों का एडवांटेज लेकर ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी तो निकालते हैं। उनकी नॉलेज में है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं महीना पहले भी जाना चाहता था, बंद था। अब ये 10 दिन के बाद डेफिनेटली वी आर ट्राइंग टू पुश इट कि गवर्नमेंट अमेंडमेंट में ले आए। बाकी उनकी मर्जी है, बट वी आर ऑफ द व्यू कि होना चाहिए। और बोलिए सर, कोई और? सर कोई बजट से रिलेटेड है तो बोलूंगा, कोई और चीज नहीं कहूंगा मैं। JJAA वर्कमैन 30% रिडक्शन मिलती है। हाँ जी, नहीं कोई चेंज नहीं है, सेम है 25,000 रुपए वाला। सर मैं डिपार्टमेंट से नहीं आया, मैं डिपार्टमेंट से थोड़ी आया हूं। हाँ बोलिए, सबको पता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ पता है। अब दंड संहिता भी खत्म हो गई है, अब नया संहिता आ गई है, ये भी तो पता है आपको। अब नाम दंड संहिता नहीं है, क्रिमिनल न्याय संहिता। हाँ जी मुझे मालूम है, इनकम टैक्स में भी अलग अलग है। सर आप अपना काम क्यों बंद करा रहे हो? आप ही को तो पढ़ के बताना होता है क्या है। सर मुझे इनकम टैक्स से क्या लेना देना ये? मुझे सर आता है कि इनकम टैक्स, मुझे प्रोविडेंट फंड नहीं आता है। सर मुझे इनकम टैक्स आता है सर, मुझे पता नहीं है लेबर लॉ क्या होता है। सर डिपार्टमेंट से पूछिए, अपने यहां पे भी कभी पूछ लिया करिए, तो फिर बात खत्म हो गई। नहीं अपने सीएम से भी पूछ के देखिए जरा, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो? ना मेरा कोई इनकम टैक्स से मैं तो जो आता है वो बताता हूं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं भी आप में से एक हूं। चलिए सर, कोई चेंज नहीं है, 15% नहीं एक्सटेंड किया उन्होंने, खत्म हो गया। नहीं पुराने वालों को तो मिल ही रहा है, आगे से खत्म हुआ। नए लॉ देखेंगे ना सर, नया बिल देखे ना, अभी पुराने वाले तो खत्म है, वो BAB कोई चेंज नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पहले भी 2 थे।
सर वही तो वो हाँ इफ यू आर एम्प्लॉयड एल्सवेयर इट वाज एप्लीकेबल ना, अदरवाइज टू नहीं था, एक ही था। फिर जो आपको आप कलकत्ते में ही हैं और कलकत्ते में खाली रखा है तो वो माफ नहीं होता था जब तक कि आप एम्प्लॉयड एल्सवेयर ना हो ना। यस करेक्ट। हाँ जी सर देखिए, हमारे दिल्ली में पैसा मेरा लगता है लेकिन बीबी का नाम डालना जरूरी होता है। खरबूजे पे छुरी गिरे और छुरी पे खरबूजा गिरे, नुकसान तो खरबूजे का ही होना है। तो वहां पर क्लबिंग का प्रोविजन है। पैसा किसका है वो देखिए, नाम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आधा आधा किया तो फिर आधा आधा का हाउस है, आधा आधा किया हुआ है। अगर आधा आधा है तो आधा आधा हाउस है। को ओनर्स इसे बोलते हैं, को ओनर्स। को ओनर ईच ऑक्यूपाई कर सकता है, सेक्शन लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। सेक्शन 25 में को ओनर्स का लिखा, 26 में को ओनर के बारे में लिखा हुआ है। ओनर, को ओनर्स। हाँ जी, और कोई सवाल है सर? ओनर्स है तो दो दो फ्लैट दोनों को मिलेंगे क्या? चारों में अगर को ओनर है उसको अपना मिलेगा, आपको अपना मिलेगा। उनको दो दो मिलेगा। कैसे हो जाएंगे भाई? उसका पोर्शन वो लेगी, आपका पोर्शन आप लेंगे। यूनिट तो 4 ही है सर। सर 4 में डाला, पैसा किसका है? दोनों का अलग अलग परसेंटेज प्रिस्क्राइब्ड है तो 2 ही घर मिलेंगे। उसको 2 अपने पोर्शन के वो कर सकता है, एक अपने वाला जो अपने वाले लो वो दूसरे का तो वाला पोर्शन ले लो, लेकिन अपने पोर्शन के 4 नहीं मिलेंगे। ये तो ऐसा थोड़ी है। डीम्ड टू बी लेट आउट। चलिए सर, और कोई चीज? हाँ, प्रिजम्पटिव टैक्स है, सपोज अप टू 12 लाख या Presumptive स्पेशल tax, हाँ। टैक्स। प्रिजम्पटिव टैक्स अंडर सेक्शन 44 AB SC AD जो भी है वो अगर अप टू 12 लाख अगर टोटल इनकम अगर है मेरा तो उस केस में टैक्स लगेगा या 12 लाख तक जो एग्जाम्पशन है वो नहीं सर, आपकी और कोई इनकम नहीं है, 12 लाख तक माफ है। हाँ। तो कुछ नहीं करना, नहीं उसमें जो बोला रिटर्न तो भरनी है सबको। लेकिन सर ये तो स्पेशल रेट है ना, स्पेशल रेट बोल के इसको तो बोला गया ना। क्या कह रहा है? माने स्पेशल रेट 6% ऑफ माय टर्नओवर और 8% ऑफ माय सर वो टर्नओवर। 56 और वो स्पेशल रेट नहीं है, वो प्रेजेंटिव रेट है। लेट अस नॉट टॉक अबाउट स्पेशल रेट। वो हाँ, that प्रेजेंटिव is- रेट की इनकम है, अच्छा वो उस माफ है 12 लाख तक। हाँ ठीक अगर है, टोटल इनकम 12 है तो 12 ही है, माफ है। माफ। ओके। चलिए सर। हाँ 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 जी, एसएससी है। हेलो, एसएससी है। हाँ 2022 में एक्सपायर कर गया, नॉन टैक्सेबल इनकम थी। अब उसका मैसेज आ रहा है, फाइल द रिटर्न। क्या आ रहा है मैसेज? फाइल द रिटर्न। कहते जरूरी विच ईयर रिटर्न? हाँ मर गया तो क्या हुआ? लीगल ईयर स्टेप्ड इनटू द शूज ऑफ द पर्सन। उनका हाँ नॉन टैक्सेबल रिटर्न था। सर आप भरो ना, उसके लीगल ईयर भर दो पर नॉन टैक्सेबल। नॉन भैया, आपको लग रहा है ना नॉन टैक्सेबल है, दे मे बी हैविंग सम इंफॉर्मेशन। लीगल ईयर इज रिस्पॉन्सिबल। 159 पढ़ लीजिए। अच्छा If there is a death of the individual, his legal heir will step into the shoes of the individual. He will have to file a return on behalf of the individual till the date of death. After the death, उसकी अपनी रिटर्न होगी। तो till the date of death रिटर्न भरवा सकते हैं। लीगल ईयर को पहले वो लेगा, पहले उसको इन्वॉल्व करेगा, फिर रिटर्न भरेगा। अच्छा, ये पीपीएफ अप्लाई जो एनएससी जैसे होता है ना, एनएससी को विड्रॉ करना है। एनएससी नहीं, एनएसएस। एनएसएस को पीपीएफ में तो अप्लीकेबल नहीं है ना, पीपीएफ। एनएसएस। थैंक यू। चलिए सर, हो गया सर। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। अच्छा सर, कोई स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट है? यहाँ हूँ मैं तो। सर स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट Friends, Friends, it is requested that still we have sufficient time. If you have any questions, please put your question मैं before यहाँ the हूँ, sir. मैं तो हूँ। हाँ, sir is ready for answering all your questions. पीएबी से रिलेटेड है। 115 पीएबी में प्रोडक्शन स्टार्ट करने की एक टाइम लिमिट दी गई थी। कोई बात नहीं, टाइम ना भी हुआ, प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो पहले रिटर्न तो पहले भी भरनी है। हाँ वो भर रहा, हाँ वो हो गया। अब क्या है सर? नहीं सर, एक्चुअली किसी एक प्लांट के अंदर में 3, 4, 5 मॉड्यूल्स होते हैं। नहीं तो एक मॉड्यूल ऑलरेडी चालू हो चुका है, तो उसके बाद अब जितने भी मॉड्यूल चालू होंगे हो जाएगा। दिस इज एप्लीकेबल फॉर 1 पैन, दिस इज एप्लीकेबल फॉर 1 पैन फ्यूचर में भी। थैंक यू सर। यस, एक्सपेंशन इज देयर। मार्जिन नहीं तो 12